Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today's point of discussion will be Section 171A to Section 171I of Indian Penal Code 1860, which is part and parcel of offences against election. सो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, तो जितना भी सेक्शंस है सेक्शन 171A से लेकर सेक्शन 171I, ये पूरे सेक्शन डील करते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस. सो इलेक्शन से रिलेटेड जितने ऑफेंस है, कौन सा एक्ट ऑफेंस कहलाएगा इलेक्शन से रिलेटेड, उसकी पनिशमेंट्स क्या होगी, ये सब आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शंस पर पूछ सकता है प्रीलिम एग्जामिनेशन में. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offenses relating to election. So section 171A of Indian Penal Code deals with candidate electoral right defined. So definition of candidate and electoral right is given under section 171A. So for the purpose of this particular chapter, candidate means a person who has been nominated as a candidate at any election. So the term candidate means if any person is nominated as a candidate in any election, that particular person who is nominated as a candidate is termed as candidate. तो जब कभी भी कोई पर्सन नॉमिनेट होता है इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट, वो अगर खड़ा रहता है इलेक्शन में, अगर वो इलेक्शन में फॉर्म भरता है, तो वो पर्सन को हम कैंडिडेट कहेंगे. देन electoral right means the right of a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote or refrain from voting at an election. So the term electoral right means the right of a person to stand or not to stand in an election. तो इलेक्टोरल राइट का मतलब ये होता है कि पर्सन का इलेक्शन में कंटेस्ट करना या इलेक्शन से विड्रॉ करना, दैट इज इलेक्टोरल राइट, एज वेल एज द राइट टू वोट एंड रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन. तो वोट करना या वोट नहीं करना, वोट करने से मना करना, ये सब इलेक्टोरल राइट के डेफिनेशन में आएगा. तो इलेक्टोरल राइट का डेफिनेशन क्या है कि पर्सन का इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट, इलेक्शन से विड्रॉ करने का राइट, वोट करने का राइट या वोट करने से मना करना, ये सब इलेक्टोरल राइट के डेफिनेशन में आएगा. Now the probable question which may be asked by the examiner on section 171A. Electoral right under section 171A of Indian Penal Code means right of a person to stand in an election, right of a person not to stand in an election, right of a person to vote in election, all of the above. So if we peruse the definition of electoral right, we comes to know the electoral right means right of a person to stand in election, as well as right of a person not to stand in election, and right of a person to vote in election, all comes under the definition of electoral right. So all of the above is a correct answer. तो यहाँ पर all of the above क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इलेक्शन कंटेस्ट करना भी इलेक्टोरल राइट है, कंटेस्ट नहीं करना भी इलेक्टोरल राइट है, और वोट डालना भी इलेक्टोरल राइट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है. नाउ सेक्शन 171B, ब्राइबरी. सो whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right, or of rewarding any person for having exercised any such right. So if any person gives a gratification to any person and the object behind such a gratification is to induce him from exercising his electoral right. तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पैसा देता है या और कोई चीज प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस लिए, उसके पीछे का इंटेंशन उसका ये है कि वो उसका इलेक्टोरल राइट जो एक्सरसाइज करने का उसको राइट है, वो इलेक्टोरल राइट में एक्सरसाइज करने में वो
कुछ ना कुछ हेर फेर करे, उसको इलेक्ट्रल राइट एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए अगर उसको पैसा दिया जाता है तो जो भी पैसा देगा, एक चीज। दूसरा, एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवार्ड फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी सच राइट। तो ग्रेटिफिकेशन देने वाला किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल वोट डालने के लिए, आमतौर पर इलेक्शन में ऐसा होता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि किसी को वोट खरीदना चाहते हैं, वो उसको पैसा देते हैं और उसको वोट डालने के लिए कहते हैं। तो ये क्या है, सेक्शन 171B में ब्राइबरी है, ऑफेंस है। तो जो देगा ग्रेटिफिकेशन, कैंडिडेट अगर पैसा दे रहा है तो वो भी लायबल रहेगा सेक्शन 171B में। और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन, और जो पैसा ले रहा है वोट डालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ए ने उसको पैसा दिया तो वो ए को वोट डालेगा, तो वो पैसा लिया, वो ग्रेटिफिकेशन लिया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्राइबरी। सो ग्रेटिफिकेशन देने वाला, ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करने वाला, दोनों लायबल रहेगा ब्राइबरी के लिए। सो कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। तो ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी किसने किया, जिसने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया, किस पर्पस के लिए, वोट डालने के लिए। सो प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो अगर कोई पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर होती है या प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन होता है कि ऐसा करोगे तो एक्शन लिया जाएगा, अगर इलीगल वोट डालोगे तो हम आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, दैट इज अ पॉलिसी, ये पब्लिक एक्शन के लिए पॉलिसी लिए हुई है, तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अगर वो एक्शन लेने के डर से अगर कोई वोट नहीं डालता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ब्राइबरी का ऑफेंस है सेक्शन 171B में। सेक्शन 171B सबसेक्शन 2, अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसा पर्सन जो ऑफर कर रहा है कोई चीज, ग्रेटिफिकेशन ऑफर कर रहा है या देने के लिए वो तैयार है या वोट हासिल करने के लिए ग्रेटिफिकेशन दे रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया, शैल बी डीम टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन, उसने ग्रेटिफिकेशन दिया ऐसा समझा जाएगा। सबसेक्शन 3 डील्स विद अ पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing that he does not intend to do or as a reward for doing what he has not done shall be deemed to have accepted the gratification as a reward. तो किस पर्सन ने ग्रेटिफिकेशन रिसीव किया, किस पर्सन ने ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 171B में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए को वोट नहीं डालना चाहता लेकिन वो पैसा लिया मैंने या कुछ ग्रेटिफिकेशन लिया और मैंने ए को वोट डाला, इसका मतलब क्या हो गया कि आई रिसीव द ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे हो। और एज अ रिवार्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, या जो उसने नहीं किया वो करने के लिए अगर उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वोट नहीं करने का अगर कैंडिडेट ने उसको पैसा दिया कि पैसा दिया और कहा कि आप वोट ना डालें, तो उसने कुछ नहीं किया फिर भी उसको रिवार्ड मिला कुछ नहीं करने का, वोट नहीं डालने का उसको रिवार्ड मिला, तो भी ग्रेटिफिकेशन। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं और मैं बी को वोट डालने वाला हूं और मैं ए को वोट डालूंगा ही नहीं कोई कंडीशन में, तो ए मुझे क्या ऑफर करेगा कि पैसा ऑफर करेगा, ग्रेटिफिकेशन ऑफर करेगा और वो ये कहेगा कि भाई तू मुझे वोट मत डाल और तू बी को भी मत डाल, तू वोट डाले ही मत। और अगर मैं वो पैसा लेता हूं वोट नहीं डालने का, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि जो मैंने एक्ट नहीं किया उसके लिए मुझे रिवार्ड मिला, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेटिफिकेशन एंड आई विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 171B। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 171B पे, दैट इज हु इज लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी अंडर सेक्शन 171B ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। पर्सन हु गिव्स ग्रेटिफिकेशन फॉर इंड्यूसिंग द इलेक्टोरल राइट ऑफ अ पर्सन, person who accept gratification for exercising his electoral right, both of the above, none of the above। तो हम अगर देखें तो लेने देने दोनों वाला जो लेगा ग्रेटिफिकेशन वो भी लायबल है, जो देगा ग्रेटिफिकेशन दोनों लायबल है। सो बोथ ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 170C, undue influence at election, undue influence at election। So whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right
commits the offense of undue influence at any election. So अगर कोई भी अनलॉफुली इंटरफियर करता है या वॉलंटरीली खुद कसदन अगर खुद होके अगर इंटरफियर करता है या इंटरफियर का अटेम्प्ट करता है काय के लिए, फॉर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा इलेक्टोरल राइट है वोट डालने का, लेकिन कोई ना कोई पर्सन मेरे इलेक्टोरल राइट मैं वोट डालने का जो मेरा राइट है उसमें इंटरफियरेंस कर रहा है, जिसके वजह से मैं फ्रीली वोट नहीं डाल सकता हूं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पर्सन हु वॉलंटरीली इंटरफियर्स इन माय एक्ट ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन अंडर सेक्शन 170C. जिस किसी ने भी मुझे मेरे राइट ऑफ वोट में इंटरफियरेंस क्रिएट किया वो सेक्शन 170C के ऑफेंस के लिए लायबल रहेगा. सब क्लॉज 2 डील्स विद without prejudice to the generality of the provision of subsection 1, whoever threatens any candidate or voter or any person in whom a candidate or voter is interested with injury or any kind. ऐसा पर्सन जो धमकी देता है किसको, कैंडिडेट को, जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन कैंडिडेट उसको या वोटर को, या ऐसे पर्सन को जिस पर्सन में उस कैंडिडेट का या वोटर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है उस पर्सन में, उसको इंजोर करने का अगर कोई धमकी देता है. समझ रहे हो कि मैं कैंडिडेट हूं, मुझे अगर कोई धमकी दे रहा है, या मैं वोटर हूं मुझे कोई धमकी दे रहा है, या मेरे कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूं किसी पर्सन में, उसको इंजोर करने की अगर धमकी देता है, या सब क्लॉज बी सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual censure. तो क्या कर रहा है ऐसा पर्सन जो कैंडिडेट को या वोटर को या ऐसे पर्सन को जिसमें वो कैंडिडेट या वोटर का इंटरेस्ट है उसको क्या कर रहा है, वो इंड्यूस कर रहा है, उसको बहला रहा फुसला रहा है, उसको ये कह रहा है कि आपने अगर ए को वोट नहीं डाला तो आपसे भगवान नाराज हो जाएगा, आपके घर में अपशगुन हो जाएगा, वट एवर इट में भी, कि तुम ये गलत कर रहे हो, भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा. अगर ये डिस्प्लीजर, डिवाइन डिस्प्लीजर और स्पिरिचुअल सेंसर की बात से अगर उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, जो पर्सन अटेम्प्ट करेगा वो सेक्शन 170C में लायबल रहेगा. shall be deemed to interfere with the free exercise of electoral right of such candidate or voter within the meaning of subsection 1. तो ऐसा पर्सन जो वोटर को धमकी दे रहा है, ऐसा पर्सन जो कैंडिडेट को धमकी दे रहा है उसको इंजोर करने की, या ऐसा पर्सन जो डरा रहा है उसको कैसे कि अगर आप ए को वोट नहीं डालोगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएगा. सो डिवाइन डिस्प्लीजर का उसको एक इंड्यूस कर रहा है. तो जो इंड्यूस कर रहा है वो इंटरफियर किया उसने इलेक्टोरल राइट में, ये इलेक्शन में, ये ट्रीट होगा सेक्शन 170C में, वो लायबल रहेगा. सब क्लॉज 3 डील्स विद अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और द मेयर एक्सरसाइज ऑफ or a legal right without intent to interfere with an electoral right shall not be deemed to be interference within the meaning of this section. For example, बहुत से गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ये कहती है कि अगर आप 100 मीटर्स के अंदर आओगे तो आप पे एक्शन लिए जाएगी, आप नकली वोट डालोगे तो आप पे एक्शन ली जाएगी. तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है जिससे धमकी दी जा रही है कि अगर आप ऐसा इलीगल एक्ट करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, तो अगर ये इसका मतलब इंटरफियरेंस नहीं होगा. पब्लिक पॉलिसी जो डिक्लेयर किए वाली है वो पब्लिक पॉलिसी का मतलब इंटरफियरेंस नहीं होगा ये सेक्शन में. अब सेक्शन 170C पर पूछा गया क्वेश्चन, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन JMFC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन, ही वॉलंटरीली मेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मेड अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन, exercised a legal right without intent to interfere with an electoral right, interfere with the free exercise of any electoral right. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कब लायबल रहेगा. सो whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right. तो किसी पर्सन के इलेक्टोरल राइट में, जो इलेक्टोरल राइट है उसमें अगर कोई इंटरफियर करता है, उसके फ्री एक्सरसाइज में इंटरफियर करता है तो सेक्शन 170C में वो लायबल रहेगा. सो ऑप्शन 4 इज अ correct answer. Now section 170D, personation at election. Personation at election.
So whoever at an election applies for a voting paper on votes in the same name, in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name. तो ऐसा पर्सन जो अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के लिए वो अप्लाई करता है वोटिंग पेपर के लिए, ऐसे पर्सन के नाम पे जो पर्सन की डेथ हो गई वाली है, जो पर्सन लिविंग नहीं है, एक तो जिंदा पर्सन भी है या डेड भी है तो भी, या फिक्टिशियस नेम पे वो करता है कि फॉर एग्जांपल मैं गया इलेक्शन के बाद अप्लाई किया मैंने काय के लिए, वोटिंग पेपर के लिए, लेकिन ऐसे पर्सन के नाम पे दूसरे पर्सन के नाम पे फॉर एग्जांपल मैं गया और किसी और पर्सन के नाम पे वोटिंग पेपर मैंने क्लेम किया, या ऐसे पर्सन के नाम पे वोटिंग पेपर क्लेम किया जिसकी डेथ हो गई है, या कोई बनावटी नाम पे मैंने वोटिंग पेपर क्लेम किया, तो मेरे खिलाफ पर्सोनेशन एट इलेक्शन का ऑफेंस होगा. और who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name. मैंने एक बार वोट डाल दिया, फिर से मैं वोटिंग के लिए गया और मैंने फिर से अप्लाई किया वोटिंग पेपर के लिए, तब भी पर्सोनेशन एट इलेक्शन का चार्जेस मुझ पर लगेंगे. एंड whoever abates, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offense of personation at an election. या ऐसा पर्सन जो इस एक्ट को अबेट कर रहा है, उकसा रहा है ये करने के लिए, जा भाई एक गलत वोट डाल के आ, तूने ऑलरेडी वोट डाला और इस पर्सन के नाम पर तू वोट डाल सकता है, इस तरीके से अगर उसको अबेट कर रहा है या उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसने ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन किया, ऐसा ट्रीट होगा. आपने बहुत सारे इलेक्शन में देखा होगा कि लोग नकली वोट डालते हैं. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उसके नाम पर कोई दूसरा पर्सन जाकर वोट करता है, कोई पर्सन दूसरे गांव में अगर रहता है तो उसके नाम पर वोट किया जाता है, एक पर्सन 2 बार वोट करता है, तो ये सब सेक्शन 170D में पनिशेबल ऑफेंस है, पर्सोनेशन एट इलेक्शन. अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 170D पे, person commits the offense of personation at election if he votes in the name of any other person who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, both of the above, none of the above. तो किसी और के नाम पे वोट करना या डबल वोट करना, दोनों सिचुएशन में सेक्शन 170D में वो पर्सन लायबल रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबोव. तो यहां पर देखिए कि दोनों सिचुएशन में वो लायबल रहेगा, बोथ ऑफ द अबोव इज अ करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन 170E पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी. अब ब्राइबरी के लिए जो हमने देखा सेक्शन 170B में जो ब्राइबरी का ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, सेक्शन 170E में बताया हुआ है. सो हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. तो जो कोई भी पर्सन इलेक्शन में पैसा देगा वोटर को वोट डालने के लिए, या जो लेगा, जो पैसा देगा कैंडिडेट वो भी, और जो पर्सन वोटर पैसा लेगा वो भी, उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, ब्राइबरी के लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ. 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी सजा उसको हो सकती है. प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली, बट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली. फॉर एग्जाम्पल बहुत से जगह इलेक्शन में ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है वोटर के खाने पीने का इंतजाम करता है. हम बहुत सी जगह देखते हैं कि सिर्फ शराब पिलाकर वोट ली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग. तो खाना खिलाकर अगर वोट ले रहा है तो ये ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग होगा, और अगर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली. अब यहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ट्रीटिंग मीन्स that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment or provisions. तो क्या होगा कि treating means bribery where the gratification consists. gratification क्या कंसिस्ट कर रहा है कि किसी को खाना खिला दिया और खाना खिलाने के बदले में वोट लिया, that is a gratification by treating. समझ रहे हो? ड्रिंक, शराब पिलाकर अगर वोट ले लिया तो ये भी ट्रीटिंग के जरिए है. इंटरटेनमेंट, कुछ उनको एंटरटेनमेंट दिया जिसके जरिए वोट लिया गया, ये भी ट्रीटिंग है. अगर इस तरीके से अगर वोट लिया जाता है, इस तरीके से अगर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है, तो सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ फाइन की पनिशमेंट होगी. फॉर एग्जांपल मैंने अगर खाना खाकर किसी को वोट दिया तो ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है, तो मुझे फाइन इंपोज किया जाएगा, सिर्फ मैं फाइन के लिए लायबल रहूंगा. नाउ पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, सेक्शन 171
F. So whoever commits the offense of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. अगर किसी को धमकी देकर अगर वोट डालने के लिए इंटरफियरेंस कर रहा होगा, उसको किसी को धमका रहा होगा, किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरेस्टेड पर्सन को अगर धमका रहा होगा, या पर्सोनेशन का एक बार वोट डाला दोबारा वोट डाल रहा होगा, या किसी और के नाम पे वोट डाल रहा होगा, ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट रहेगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों भी उसको हो सकती है। नाउ सेक्शन 171G, false statement in connection with an election. So whoever with intent to affect the result of an election makes up or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine. फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और उस कैंडिडेट के बारे में अगर मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश करूं जिससे उसकी इज्जत खराब हो सकती है, और वो स्टेटमेंट अगर गलत है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है, और मुझे पता है कि मैं जो स्टेटमेंट पास कर रहा हूं वो स्टेटमेंट सही नहीं है, फिर भी मैं स्टेटमेंट अगर पास करता हूं और उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता हूं मेरे स्टेटमेंट के जरिए, और मेरा एम ये है कि अगर उसकी छवि खराब होगी तो वो इलेक्शन में उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर इस इंटेंशन से मैं फॉल्स स्टेटमेंट अगर पब्लिश करता हूं तो मैंने सेक्शन 171G का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा, एंड आई विल बी पनिश्ड विथ फाइन, मुझे फाइन इंपोज कर सकता है कोर्ट, और वो फाइन विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, कितना फाइन इंपोज करेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। नाउ सेक्शन 171H, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। सो whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 rupees. तो अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं किसी कैंडिडेट के परमिशन के बगैर, कोई इलेक्शन लड़ रहा है कोई कैंडिडेट, उसके परमिशन के बगैर अगर मैं कोई उसके प्रचार में, उस कैंडिडेट के प्रचार में अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करता हूं, पब्लिक मीटिंग, या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई सर्कुलर या कोई पब्लिकेशन करता हूं, कोई बैनर वगैरह लगाता हूं, उसके लिए पैसा खर्च करता हूं मैं, किसके, कैंडिडेट के परमिशन के बगैर, अगर मैं उसके प्रचार के लिए अगर कोई पब्लिक मीटिंग कंडक्ट करता हूं, कोई एडवर्टाइजमेंट करता हूं उसको प्रमोट करने के लिए या उसको इलेक्शन में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो आई शॉल बी पनिश्ड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। तो मैं कैंडिडेट के परमिशन के बगैर ना तो मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूं, ना तो उसकी एडवर्टाइज कर सकता हूं, ना तो उससे रिलेटेड बैनर लगा सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सेक्शन 171H में मुझे 500 रुपए तक का फाइन कोर्ट मुझे इंपोज कर सकता है मेरे अगेंस्ट में, प्रोवाइडेड that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate. अब ये प्रोवाइडेड में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंडिडेट के परमिशन के बगैर 10 रुपये तक का अगर खर्च करता हूं, मैं लिमिट है 10 रुपये तक का अगर मैंने खर्च किया कैंडिडेट के परमिशन के बगैर, और खर्च करने के 10 दिन के अंदर मैं वो कैंडिडेट की अगर परमिशन लेता हूं, उसके अथॉरिटी लेता हूं, उसकी कंसेंट लेता हूं, उसका अप्रूवल लेता हूं, उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि मैंने वो 10 रुपये खर्च कैंडिडेट के अथॉरिटी में किया हूं, कैंडिडेट के अप्रूवल के साथ किया हूं, ऐसा ट्रीट होगा। तो बात समझिए, सिर्फ 10 रुपये तक का लिमिट है यहाँ पर। 10 रुपये तक अगर मैंने खर्च किया विदाउट कंसेंट ऑफ कैंडिडेट, और खर्च करने के 10 दिन के अंदर अगर उसकी कंसेंट लिया तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा। मैंने उसके कंसेंट के साथ ही खर्च किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 171H में। नाउ सेक्शन 171I, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। So whoever being required by law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such account। अगर कोई लॉ है
और वो लॉ के चलते अगर कैंडिडेट पे ये बंधन कारक है कि वो जो इलेक्शन में खर्च कर रहा है उसका वो अकाउंट मेंटेन करे, उसका वो हिसाब किताब रखे, और वो हिसाब किताब नहीं रखता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, shall be punished with fine which may extend to 500 rupees। तो कैंडिडेट अगर हिसाब किताब नहीं रखता है इलेक्शन का तो उसको पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट होगी फाइन which may extend to 500 rupees। So these are the particular offenses relating to election. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.